like you. और आपके समान कोई There is नहीं। no one like आपके Jesus. समान कोई नहीं यीशु। We praise His name आपके नाम को हम धन्य कहते हैं। more and more, अधिक से अधिक More आपके and नाम more. को हम ऊंचा उठाते हैं। more and more. और ज्यादा। Yes, Lord, be exalted, यीशु का नाम। be lifted on high. यीशु का नाम जलाल पाए। Let your name reign above every other name. आपका नाम हर नाम से ऊंचा उठाया Let your जाए। name be high, O God, आपका नाम ऊंचा उठाया because जाए। you are the living and mighty God. क्योंकि आप जीवित और सामर्थ्य से परमेश्वर हैं। Father God, we pray that tonight you will speak to your people, O God. आज आप हम सभी के हृदयों से बात करें। Lord, you will open the spiritual eyes of understanding. आप हमारी समझ की आंखों को तेजोमय You will करें। enlighten us today with your word, O God. आज अपने वचन के प्रकाश से हमें प्रकाशित करें। Today you will make us ready for your truth, O God. अपने सत्य से हमें भरें। Today you will empower us with your word, Jesus. अपने वचनों से हमें सामर्थ्य करें। Today you will fill us with your glory and power. अपने महिमा और अपने सामर्थ्य से हमें भर दे पिता। Because we are trusting you, Jesus. क्योंकि हमारा भरोसा आप We है। are seeking you, O God. यीशु हम आपकी खोज We करते are desiring you, O God. हैं। यीशु हम आपको चाहते हैं। And we want you to speak, O God. और हम चाहते हैं कि आप हमसे बात करें। Anoint me and my wife Jaya right now. इसी वक्त प्रभु हम दोनों पर आप अपने अभिषेक को उतारें। Fill us right now with your Holy Spirit. इस वक्त प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से हमें भरें। Give us the utterance, O God. आप हमारे मुखों में अपने शब्दों को डालें। Let your fire proceed, O God. आपकी अग्नि हमसे बह Let your करे। fire come upon your people tonight. आपकी अग्नि आज उतर आए। Let your people be awakened this night, O God. आज प्रभु आपके जो सारे बच्चे हैं पवित्र आत्मा की आग से भर Let जाएं। your people be awakened tonight. आज हम सभी जाग जाएं। Let us know, Master, what we are called for and what we are supposed to do, Master. हम जान ले प्रभु कि हमें क्या करना है। Let the church do not sleep and slumber. कलीसिया सोए नहीं। Let the church do not go in lukewarmness. कलीसिया गुनगुनेपन में ना जाए। But now is the time the body of Christ to rise up. आमेन। अब समय है कि आप जाग जाएं। Now is the time for the church of God, the people of God to rise up. अपनी नींद से उठिए। It's time to face the Goliath. अब समय है कि गोलायत का सामना It's करें। time to go and take the sword of the word of God and destroy the hidden forces of darkness, the forces of kingdom of the evil one that are reigning against the people of God, and to destroy it and bring confusion and bring ambushments in the camps of the enemy. अब समय है कि आप वचन की तलवार लें, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरें और शैतान के अंधकार के राज्यों में कोलाहल और उलझन को आजाद करें। अब समय है कि आप जाग जाएं। Lord, I pray tonight the people of God will awaken spiritually, people of God will arise spiritually, people of God will not, oh Father, be weakened and afraid of the devil, but Lord, the people of God will stand firm, the people of God will be ready, the people of God will be prepared, the people of God will come close to you, the people of God will hear His voice, the people of God will wear the armor of God, the people of God will take the sword and attack every evil, to take the word of God and destroy the forces of darkness and establish the kingdom of Christ. Amen. I pray, Lord, tonight you are going to speak to people who are not ready, who are not awakened, who are not enlightened. You will speak to them, O God. You will speak to their hearts, O God. You will talk to them this evening, O God. And your fire will come in their hearts, O God. That they will battle against the powers of darkness and destroy the forces of the evil one and win every spiritual battle in the name of Jesus.
Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. We praise you and we bless you, Lord. हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, We glorify and we magnify your name, O आपके नाम Lord. को महिमा स्तुति और आदर देते We हैं। lift your name, Jesus. यीशु इस नाम को ऊंचा, Oh, we bless you, Jesus. यीशु का नाम, Thank you, Master. धन्यवाद यीशु। Jesus' name we pray and ask. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen and amen. आमेन, आमेन। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. Today I'm going to speak on a very, very important topic. और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा The हूँ। topic that I'm going to speak with you is to how to battle with the enemy. और ये विषय है कि हम शैतान से या हमारे दुश्मन से कैसे लड़ें And how to win a spiritual warfare. और हम आत्मिक युद्ध को किस तरह जीतें। Church, we need to understand one thing, that we all believers are in a battle that is spiritually. और हम सभी को ये ध्यान रखना है कि हम सभी आत्मिक युद्ध में हैं। Battle that you can see or you cannot see. एक ऐसा युद्ध चाहे हम देख पाए या ना देख A पाए, battle where your enemy is unseen. एक ऐसा युद्ध जहाँ पर आप हो सकता है कि चीजों को देख ना पाए, You may be aware or you may be ignorant. आप उसके बारे में जानकारी रखते हो या अनजान हो, You may like or you may dislike. आपको पसंद हो या ना पसंद हो, But you and I are in a battle. पर आप और मैं एक आत्मिक युद्ध में हैं। And I want to speak to you this evening that you need to be awakened. और आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको जागना है You need to be standing firm in the presence of God. और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहना है। You need to be aware of the schemes of the evil one. आपको शैतान की चालाकियों को समझना है Live alert in this world and stay connected to Jesus. और यीशु मसीह के साथ अपने संपर्क को जोड़े रखना है और हमेशा यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना है। You know, when I speak to you, we are in a spiritual battle. It doesn't mean you need to focus on the Satan more or his kingdom more or his power more, but you need to be focused in the presence of God more, in the glory of God more, in the word of God more, and you need to be stand firm in your faith. अब यहाँ पर आप आत्मिक युद्ध में, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पूरा ध्यान, आपका पूरे जो सोच है वो शैतान क्या कर रहा है या शैतान यूं कर रहा है, इस पर न रहे, पर परमेश्वर की उपस्थिति में आप बने रहे, परमेश्वर की महिमा में आप बने रहे, परमेश्वर के वचनों में आप बने रहे। Just listen very carefully. Satan will not attack you when you are ready. शैतान आप पर हमला तब नहीं करेगा जब आप तैयार हो। Satan will not attack you when you are ready with the word and when you are ready with the spirit. जब आप वचन और आत्मा में तैयारी में हैं, तब शैतान आप पे हमला नहीं करेगा। He will attack you when you are away from it and when you are not standing firm in your faith. और वो हमला तब करेगा जब आप अपने विश्वास में मजबूत ना हैं और जब आप तैयार नहीं हैं। And God has given you His Spirit, His Word, His presence to destroy every work of darkness. परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, परमेश्वर ने आपको आत्मा दी है अपनी, और परमेश्वर ने आपको अपनी उपस्थिति दी है ताकि आप इन सभी चीजों पर विजय हासिल करें। Now when Satan attacks you, his main purpose is to steal, to kill and to destroy. अब जब शैतान हमला करता है तो उसका एक ही मकसद होता है, चोरी करना, नाश करना, घात करना। His purpose is to take away everything that you have good inside you. और आपके अंदर जो अच्छी चीजें हैं शैतान उसे निकालना चाहता है। Everything that is been a blessing for you, he wants to remove it. और जो भी चीज आपके लिए एक आशीष का कारण है, शैतान क्या चाहता है कि वो अच्छाई, वो आशीष आप में से चुरा ले। But I want to tell you one thing very clear, that God has given you everything. God has given you everything to resist and defeat the enemy's plots and schemes. पर परमेश्वर ने आपको सारी शस्त्र और सामग्री दी है, हर एक वो ऐसी चीज दी है ताकि आप शैतान का सामना करें और आप शैतान को हरा सकें। Now be very careful, understand the thing, God never wants you to fight against the Satan in your own strength. अब याद रखिए कि अपने ताकत में आपको शैतान से लड़ना नहीं है। He never wants you to be afraid and frightened of him. और ये भी नहीं कि आप डर जाएं और घबरा जाएं शैतान के नाम से। You just need to live strong, alert
and knowing God is in full control. आपको सचेत रहना है, आपको सावधान रहना है और जानना है कि परमेश्वर अभी भी सारी चीजों पर सत्ता रखते So हैं। what is the introduction that I've given to you? अब मैंने आपको क्या परिचय दिया है? आप युद्ध में हो, चाहे आपको पसंद है, चाहे आपको पसंद नहीं है, चाहे आप जागरूक हो, चाहे आप सोए हो, आप एक युद्ध में हो। जब आप नमक और ज्योति के समान इस जीवन में जीते हो तो शैतान जरूर अड़चन लाएगा। क्यों लाएगा? क्योंकि कुछ समय तक वो पृथ्वी पे रहेगा, पर जब कलीसिया ऊपर जाएगी एक समय आएगा उसका जो अंत है, बॉटमलेस पिट, और एक ऐसा खड्डा जिसका कोई अंत नहीं, that is his end. वो शैतान का अंत That है is the conclusion of Satan. और वही शैतान का अंत है। But till the time that the rapture comes, there are going to be attacks. और स्वर्गरोहण तक भी शैतान के हमले आते रहेंगे। And वो किसको अटैक करेगा? जो चर्च में साल में 3 बार आते हैं उनको बिल्कुल अटैक नहीं करेगा। वो कहेगा सोते रहो। जो विश्वासी बपतिस्म करके 3 महीने के बाइबल खोलेगा उसको बोलेगा तू सोते रहे, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा मसीह है, उसको ऐसा करके हमेशा बोलते रहेगा। परमेश्वर के कार्य के लिए नहीं आएगा, बोलेगा तू बहुत अच्छा विश्वासी है, तू सोते रहे, उसको बोलेगा बेटा तू यही करते रहे। बट वो उन लोगों के पीछे है जो उसके राज्य को चुरा रहे हैं और परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहे हैं, जो उसके कार्यों को तकलीफ दे रहे हैं, जो उसके पर्पस को फुलफिल नहीं करने दे रहे हैं। वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो योद्धा बन रहे हैं, वो हर समय आत्मा में तैयार है, जागरूक है, प्रार्थना कर रहे हैं, अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग में प्रार्थना कर रहे हैं और हर एक विश्वासी को यीशु के नाम से, यीशु के लहू से कवर कर रहे हैं, सुरक्षा को मांग रहे हैं, आशीषों को मांग रहे हैं, रिवाइवल को मांग रहे हैं। उन लोगों पर उसकी नजर है। आज मैं वचन उन लोगों के लिए दूंगा जो परमेश्वर के लिए आ गए। आज मैं वचन उन लोगों के लिए दूंगा जो परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए तैयार है, जो सोना चाहते हैं, साल में 3 बार 4 बार 6 बार आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज ये वचन नहीं है। आज वचन है कि परमेश्वर के लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं सेवकाई में, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं। यीशु मसीह ने आपको सब कुछ दे दिया है कि आप शैतान के हमलों को उसको काउंटरफीट कर सके और उसको डिस्ट्रॉय कर सके, उनका सामना करें और नाश करें। The first thing how you need to resist and defeat the schemes of Satan. अब सबसे पहली बात कि आप शैतान की जो चालाकियां हैं उनके विरुद्ध में क्या कर सकते हैं। I just request Sister Chitra just to hold, just to read the verses and Jaya can interpret so we can save the time. The first thing I want to speak to you, जब भी हम युद्ध की बात करेंगे तो हमको क्या लगेगा? पहला ताकत चाहिए। आप सिस्टर चित्रा, how do you feel? Yes. ब्रदर जॉनसन, जब हम युद्ध के लिए अगर मैं बात करूं, हमको शैतान से युद्ध करना है, उसके स्कीम्स को, उसके प्लान्स को डिफीट करना है, तो हम पहले कहेंगे कि हमको स्ट्रेंथ चाहिए। अगर कोई एथलीट को बोलो कि लड़ना है तो वो बोलेगा मेरे को ऑल स्ट्रेंथ चाहिए। बट परमेश्वर के राज्य में उल्टा है। सुनो ध्यान से, जब आपको शैतान के युद्ध से लड़ना है तो पहली चीज आपको क्या चाहिए? सबमिशन टू गॉड। इट इज वाइस वर्सा, परमेश्वर की तरफ समर्पण। द किंगडम ऑफ गॉड डजंट वर्क लाइक द वर्ल्ड, इट इज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और जो परमेश्वर का राज्य है वो शायद दुनिया के राज्य के समान कार्य नहीं करता। आपको इस युद्ध में सबसे पहले क्या चाहिए? समर्पण परमेश्वर की तरफ। I'll tell you from the scripture, James 4:7. याकूब 4:7। Now it says, submit yourself to God. आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें। First what it says, submit yourself to God. आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें। Then what it says, resist the devil शैतान का सामना करें and he will flee from you. और वो तुमसे दूर भाग जाएगा। Now I want to make one thing very clear. Listen everyone. अब यहाँ पर जो भी है और जो सुन रहे हैं, आप सभी All the सुनें। viewers, I want my wife to be fast. I want to be fast. I want Chitra to be fast, very fast today. Because topic I want to cover it tonight. Okay, now listen. First thing that God says, you need to submit to God. सबसे पहले परमेश्वर के अधीन रहें। And always remember, the power of God, that is the Trinity, cannot be compared with the power of Satan. Mind it well.
और हमेशा याद रखें कि त्रिएक परमेश्वर का सामर्थ और शैतान की सामर्थ की आप तुलना भी नहीं कर सकते। God will not give you his full power to fight against the enemy because it is not required. He will give you whatever is required. परमेश्वर पूरा सामर्थ अपना नहीं देगा कि आप शैतान से लड़े, क्योंकि उतनी सामर्थ की जरूरत है भी नहीं। He is defeated. शैतान हार चुका है। The one who is your enemy, remember it, he is defeated. और शैतान जो आपका दुश्मन है वो हार चुका है, इस बात को याद रखिए। But he is a serpent, he is wise. पर शैतान चतुर है, शैतान सर्प के नाई चतुर है। And the Bible speaks on be alert, be wise, because the enemy is ready. क्योंकि बाइबल कहता है कि आप सतर्क रहें, आप सावधान रहें, क्योंकि शैतान चालाक है। The work of Satan is deception and darkness. और शैतान का कार्य क्या है? भरमाना और अंधकार। And the word of God will make you to aware and understand what is deception and what is darkness. और परमेश्वर का वचन आपको बताएगा कि भ्रम में फंसना क्या है और अंधकार क्या है। Now when you submit to God, Lord, I submit this day, every day, when you come to Jesus and say, Lord, I submit this day at your feet. Submission. जब आप परमेश्वर के चरणों में आते हैं और कहते हैं कि हर दिन प्रभु मैं अपने आप को आपकी तरफ समर्पित करता हूँ, अधीनता में लाता हूँ। Submission will bring discernment. अधीनता आपके जीवन में क्या लाएगी? ध्यान से सुने, आत्माओं को परखने का दान। Listen, more you submit to God, जितना आप परमेश्वर के अधीन जाएंगे, more you will get the gift of discernment. उतना आप आत्माओं को परखने पाएंगे। And when you come close to God, और जब आप परमेश्वर के नजदीक आते हैं, you are covering, you are entering the protection and the care of God. और आप परमेश्वर की सुरक्षा के चक्र में आ जाते हैं। When you are submitting to God, जब आप परमेश्वर के अधीनता में रहते you are हैं, standing firm in your faith and you are able to resist it. आप अपने विश्वास में दृढ़ रहते हैं और आप शैतान का सामना कर पाते हैं। We don't have to run after him to fight against him. हमें शैतान के पीछे नहीं दौड़ना है कि उसके साथ जाके युद्ध करना है। शैतान से लड़ना है, यीशु से करीब आओ। समस्या आ रही है, तकलीफें आ रही है, तूफान आ रहे हैं, बीमारी आ रही है, परेशानी आ रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, वो डिफिकल्टी आ रही है, ये डिफिकल्टी है। डिफिकल्टीज के तरफ मत देखो, यीशु के करीब आओ, यीशु के अधीन हो जाओ, यीशु के अनुग्रह में आओ। यीशु में आप खड़े होते जाएंगे, आत्मा में आप बुलंद होते जाएंगे, डिसर्नमेंट में आप बढ़ते जाएंगे, आप डिसेप्शन के कामों को समझेंगे और आप शैतान को यीशु के नाम से रेजिस्ट करेंगे। सामना करेंगे। कैसे? अगर आप सबमिशन में आएंगे तो। अधीनता। Today I want you to remember, you and I, we all need to submit to God. आपको और मुझे, हम सभी को क्या करना है? परमेश्वर की तरफ अपने आप को अधीनता में लाना है। Submission to God's authority and continually resisting the attacks and the lies. परमेश्वर की तरफ हमेशा एक समर्पण रखना है और शैतान की सारी झूठ का सामना करना है। Satan has one thing very clearly, lies. शैतान के पास एक बहुत ही अच्छा यंत्र या जो हथियार है वो क्या है? झूठ। Everything that is spoken to you, check with the word of God. जो भी बातें आपसे कही जाती हैं, आप अपने उन सारी बातों को परमेश्वर के वचन से उनका परीक्षण करें। Doctors are saying to you, you will be sick and sick and sick. डॉक्टर्स आपसे कहते हैं कि आप बीमार होंगे, बीमार होंगे। Everything is coming on, you will live with this, you will live with that, you will have this problem, you will have this problem, but God says, you will live with my righteousness. You will live with my glory. You will live with my truth. You will live with my presence. You will live with my healing. You will live with my provision. You will be under my care. You want to believe to God's word, or you want to believe the lies of the world? और फिर जो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप हमेशा बीमार रहेंगे, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि चंगाई आपके लिए है, धार्मिकता आपके लिए है, परमेश्वर का सत्य आपके लिए है। तो क्या आप परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना चाहते हैं या शैतान की झूठ पर विश्वास करना चाहते हैं? Second point, you need to come under the armor of God. दूसरा मुद्दा कि आप परमेश्वर की शस्त्र सामग्री को पहन लें। Sister Chitra, can you read Ephesians 6:10-12? इफिसियाँ 6:10-12। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं
परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आसमान में है। The 12th verse, till 12th you have read? Okay. Now the word says here, the first thing you need to understand that you have to put the whole armor of God. सबसे पहले जो हमें समझना है कि हम परमेश्वर के शस्त्र को पहन लें। अगर हम और प्रैक्टिकली वे में बात करें, अगर इंडियन सोल्जर युद्ध करने के लिए जाएगा तो वो क्या बुलेट प्रूफ जैकेट वो क्या छोड़ के जाएगा? वो गन्स क्या छोड़ के जाएगा? वो क्या गन्स के अंदर जो पिस्टल्स भूल के जाएगा? क्या वो हेलमेट बुलेट्स भूल के जाएगा? हेलमेट अपना भूल के जाएगा? वो हर एक चीज टॉप से लेकर बॉटम तक हर एक हथियार की चीज लेके जाएगा। और हम क्या सोचते हैं विश्वासी, देव बापा आय आमच्याकडे तर आपल्याला काय काही आवश्यकता नाही, काही काळजी नहीं करायची, आपल्याला झोपायचं आहे। आज सबसे ज्यादा विश्वासी लोग भूल जाते हैं कि हम युद्ध में हैं। वो बोलते हैं बस यीशु है और हम चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है प्रतिदिन अपने सारे वेपन्स, अपने शस्त्र को पहनो। कोई भी शस्त्र आप छोड़ो मत। हर एक शस्त्र आपके लिए बना हुआ है और प्रतिदिन आप ये मन में रखें कि आज मैं निकल रहा हूं, मैं परमेश्वर के शस्त्र को पहन कर रखूं। और एक ऐसा शस्त्र है, सब डिफेंसिव है बट एक ऑफेंसिव है, एक अटैकिंग है, वो है तलवार, वो है वचन की तलवार। ब्रदर मला तर टाइमच नाही भेटला वचन पाठायला, मी तर पडलेच नाहीये, मी अभ्यास नहीं केलाय, मी वाचत नाही है। अगर आप वचन नहीं पढ़ोगे तो आप शैतान के युक्तियों का सामना कैसे करोगे? अगर हमको चाहिए कि शैतान की युक्तियां हमारे जीवन में प्रबल न हो तो हमको इस वचन को पढ़ना है, इस वचन को मनन करना है और इस वचन को समय समय पर इस्तेमाल करना है। और when we use this word of God, we are putting discomfort and discomfitment in the camp of the enemy. और जब हम परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करते हैं तो शैतान के राज्य में हम एक उलझन को उत्पन्न करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You need to understand that every day you need to fill your mind with the word of God. हर दिन आप अपने मन को, अपने विचारों को परमेश्वर के वचन से भरें। अगर ये मन में दुनिया की चिंताएं हैं, दुनिया का तनाव है, अलग ही ख्वाब है, अलग ही बातें हैं, तो आप युद्ध नहीं जीत सकते। आप युद्ध तब जीत सकते हैं जब आपका मन परमेश्वर के वचनों से भरा हुआ है। हम सोचते हैं ये तो मन में ही था, अगर आपके मन में है तो आप कृत्य में हार जाएंगे। आपको आत्मा में, मन में, शरीर में, तीनों जगह पे आपको तैयार रहना है। आज परमेश्वर का वचन आ रहा है, क्रिस्ती लोगों आप उठ जाओ, क्रिस्ती लोगों आप तैयार हो, क्योंकि आपका जो विरोधी है ना वो छुट्टी नहीं लेता है। वो 24/7, कल 24 तारीख थी ना सिस्टर, 24/7 था। 24/7 पे बहुत मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन मैं जब मैसेज बना रहा था, परमेश्वर कहता है तुम्हारा विरोधी 24/7 तैयार है। और मसीह लोग आता जोप तो नहीं, और मैं थोड़ा सोता हूं, और मैं थोड़ा खाता हूं, और मैं थोड़ा लॉकडाउन में आराम करता हूं। लॉकडाउन चल रहा है ब्रदर, लॉकडाउन संसार के लिए है, मसीह के लिए नहीं है। आज परमेश्वर कह रहा है मसीह के लोगों आप आत्मा में खड़े हो जाओ। आप युद्ध तब कर पाओगे जब आप आत्मा में खड़े रहोगे। ब्रदर मतलब मैं पूरा दिन खड़े रहूंगा, बैठू नहीं क्या? इसका मतलब यह है कि आप आत्मा में तैयार रहो, स्पिरिट में रेडी रहो। परमेश्वर क्या बात कर रहा है? अपने आत्मिक आंखों, अपने आत्मिक कानों को रेडी रखो, अपने जीवन को पवित्र रखो, अपने जीवन को तैयार रखो कि परमेश्वर आपसे बात करे और आप वहां पर कृति करें। God speaks to you and you're doing it. God is going to tell you, go ahead, and you are going in that direction. That is led by the Spirit of God. And those who are led by the Spirit of God are called the sons of God. जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। Satan wants always to bring a trap before you. Sorry, symbols are. I'm not playing symbols. Satan wants to always bring a trap against you. शैतान हमेशा चाहेगा कि वो आपके खिलाफ या आपके लिए एक जाल को बिछाए। But God wants your spiritual eyes to be enlightened, that you will see what the enemy is plotting against you. पर परमेश्वर आज आपकी आत्मिक आंखों को प्रकाशित करना चाहते हैं
ताकि आप उस हर जाल को देख सकें। I want to speak to the Christians tonight. आज मैं मसीहों से बात करना How चाहता many of you are praying for the gift of prophecy? आप में से कितने भविष्यवाणी के दान के लिए मांगते हैं, दुआ करते How हैं? many of you are praying for the word of wisdom, word of knowledge and word of understanding? आप में से कितने वचन ये प्रार्थना करते हैं कि ज्ञान का शब्द, बुद्धि का शब्द, ये जो पवित्र आत्मा के दान है वो आपको मिले? How many of you are praying for the working of miracles and the gift of faith? आप में से कितने चमत्कारों के दान के लिए और विश्वास के दान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? बहुत दुख की बात है कि हम मसीहों ने सोच लिया है कि ये दान हमारे लिए नहीं है, ये दान बड़े बड़े दासों के लिए। आज परमेश्वर कह रहा है ये सारे दान, ये सारे फल आपके हैं। Amen. ये सारे दान, ये सारे पावर्स गिफ्ट्स, सारे डिसर्नमेंट गिफ्ट्स, Yes. सारे विश्वास के गिफ्ट्स, ये आपके हैं। Yes. It Amen. belongs to you. आपके हैं, It belongs to you. आपके हैं। And God is speaking tonight. Claim, my child, these gifts and walk in power, walk in authority and destroy the works of darkness. और प्रभु चाहते हैं कि आप इन वरदानों को प्राप्त करें और आप परमेश्वर के दिए हुए इस अधिकार में और इस सामर्थ में चले। आप कब तक सोचोगे कि ये चीजें मेरे लिए नहीं है? क्यों नहीं है? आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, आप विश्वास करते हो कि वो जिंदा खुदा है, आप विश्वास करते हो कि वो तीसरे दिन जी उठा है, तो ये दान, ये गिफ्ट्स, ये कॉलिंग्स आपके लिए है। ये डिसेप्शन, ये लाइज सैतान का जो आपको अंदर भर दिया है कि आपके लिए नहीं है, ये शैतान का डिसेप्शन है। ये शैतान का भ्रम है। And you are believing the deception and you have stopped praying for it because you believe it is not for you. और शैतान ने ये झूठ आपके अंदर डाल दिया कि ये आपके लिए नहीं है। Come on, can you just close your eyes for a moment, please? क्या अपनी आंखों को एक मिनट के लिए Shama बंद nama करेंगे? kosi hira kadala makora kadala bashodor boshkeri ala makora kasta. Ratala baba 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 sodor boshkor budi ala baba. Rina la la la. Come on, can you speak? Can you speak in the language of God? Riyala baba baba kora भाषा baste. में बात कर सकते Komra हैं। baba mashanda la baste riyala makora kastorma. Lord, tonight I pray for all the viewers and all the people of God who are watching this video from different places of God. Tonight I pray every work of deception that Satan has created in their minds and they have believed that stronghold, that these power gifts are not for them. Today I steer that stronghold, that spirit of lies that is working in them. I pull it down in the name of Jesus and I release the light of Jesus, the truth of Jesus, the power of Jesus, that Lord, your people need to arise in power. Your people need to arise in spirit. Your people need to be ready for what you want to speak to them about. Anoint your people tonight, O God. Anoint. Lord, these are the very crucial days, O God. These are very important days for the people of God to arise in spirit. ये बहुत ही जरूरी है कि इस समय परमेश्वर के लोग आत्मा में, सामर्थ में बढ़े। It's very important not to concentrate on this pandemic, but to concentrate and submit to Jesus, the greatest God who died for us and who rose back on the third day. और ये समय है कि हम इस पेंडेमिक पर ध्यान ना दें, पर यीशु मसीह पर ध्यान दें, जो तीसरे दिन जी उठे। I pray in the name of Jesus, the people of God will rise in spirit, walk in faith and walk victoriously. अब अपने विश्वास में और विजेता में आप और बढ़े, परमेश्वर के सामर्थ में और बढ़े और आत्मा में उठे। Lord, release your gifts, release your power gifts upon your people tonight. Let them see visions. Let them see, oh Lord, what the Lord is showing to them, the great mysteries, the great things where they need to pray, where they are falling away, where they are falling short of God. Tonight we pray in the name of Jesus. We pray in the name of Jesus that the power of God will be released. We do, myself and my wife, we come in agreement and we release, oh God, that from this day onward, the people of God will arise in spirit, arise in prayer, arise in supplication, arise in groaning, arise in utterances, oh God, that they will speak to you, they will cry out to you, they will call unto you, and they will not be unaware of the schemes of the devil, but in the name of Jesus, they will resist it.
they will destroy it and they will crush the powers of the enemy Crush under it. their feet in the name of Name of Jesus. Jesus. Hallelujah. Oh, Ramash. Glory to Jesus. Oh, glory to Jesus. Glory, Master. Come on, can you lift the name of Jesus? क्या आप यीशु के नाम को ऊंचा उठाएंगे? Oh, come on, can you lift the name of क्या आप Jesus? यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएंगे? Glory, glory, glory to the name of Jesus. Glory to the name of Jesus. Thank you, Father. Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. The Hallelujah. third point I want to speak to you, as you fight the enemy's temptation, you need the power of prayer. और तीसरा मुद्दा कि आप जब शैतान के मोह और परीक्षाओं का सामना करते हैं तब आपको क्या जरूरी है आपके लिए? प्रार्थना का सामर्थ्य। Sister, can you read Matthew 18 and 19? मत्ती 18 और 19। Can you read in Hindi, please? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वही स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे मांगो एक मन से हो, तो वो मेरे पिता और मैं स्वर्ग में उनके लिए वो चीजें करूंगा। 2 लोग, फिर से पढ़िए सिस्टर, 2 लोग। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन, तुम में से 2 जन, यस यस सिस्टर, पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे पृथ्वी मांगे, पर किसी बात के लिए, जो बात पवित्र आत्मा आपको कहेगी, जो बात पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने के लिए कहेगी, और 2 जन पृथ्वी पे, इंडिया में 125 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन प्रभु आपके लिए 1 जन खाली मांग रहा है। और ये याद रखिए, जो जीवन साथी परमेश्वर ने आपको दिया है वो आपके निकट है पूरा दिन। आप परिवार में, आपके बच्चे आपके साथ हैं, आपके माता पिता आपके साथ हैं, आपके भाई बहन आपके साथ है। यदि आप अपने परिवार में से एक व्यक्ति को लेके, एक विषय के लिए लेके एक मत होगे, पृथ्वी पे आप बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, पृथ्वी पे आप खोलोगे वो स्वर्ग पे खोला जाएगा। वो सामर्थ आपको दी गई है, वो ताकत आपको दी गई है, आपकी धार्मिकता से नहीं परंतु यीशु मसीह के नाम से। आज विश्वासी हम लोग एग्रीमेंट नहीं करना चाहते हैं, सहमत नहीं होना। एक विश्वासी कहता है ईस्ट में चले, दूसरा विश्वासी कहेगा नहीं नहीं ब्रदर वेस्ट में चलेगा, वेस्ट में। एक विश्वासी कहेगा नॉर्थ में चलना है, दूसरे बिलीवर्स कहेंगे हमें साउथ में चलना है। और शैतान चाहेगा मस्त बढ़िया ऐसा ही काम मांगता है, इधर ऐसा ही चलने दो इधर, क्योंकि मत्ती 18:18 आज विश्वासियों में पूरा ही नहीं हो रहा है ना, क्योंकि एक मत नहीं हो रहा है। आज परमेश्वर कहता है आज जो दिन है वो आप आत्मा में चलो। आपका विरोधी आपका पड़ोस वाला नहीं है, आपके बगल वाला नहीं है, परंतु वो हारा शैतान है। और उसके लिए, उससे लड़ने के लिए आपको इस पृथ्वी पर एक मत होना पड़ेगा, तभी आप स्वर्ग को खोल सकते हो। एज़ेकियल हमेशा लिखता है हर एक अध्याय में, मैं देखता हूं स्वर्ग को खुलते हुए, मैं देखता हूं स्वर्ग को खुलते हुए। ट्रांस बोलता है, मतलब उसकी आंखें खुली है और वो देखता है स्वर्ग को खुलते हुए, और देखता है पवित्र आत्मा को आते हुए और जाते हुए। आज यीशु का लहू आपके पास है, पवित्र आत्मा आपके पास है, वचन आपके पास है, कलीसिया आपके पास है, टेक्नोलॉजी आपके पास है, असिस्टेंस आपके पास है, बिलीवर्स आपके पास है। बट हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा खा के थोड़ा सोता हूं, लॉकडाउन चालू है ब्रदर, लॉकडाउन क्या चालू है ब्रदर? सुनो, लॉकडाउन। थोड़ा सोते और आराम करते हैं। अब तो जाग जाए, अब तो जाग जाए। प्रभु बोल रहा है अब तो जाग जाओ। तुम्हारा शैतान 24/7, कल तारीख 24/7 थी ना, वो 24/7 काम कर रहा है। तुम कितना काम कर रहे हो? कब तक तुम बहाने बनाओगे? कब तक घर पे बैठे रहोगे? परमेश्वर के लिए कब काम करोगे? अब समय आ चुका है, अंतिम के दिन है। आप आत्मा में जागो, प्रार्थना में जागो और परमेश्वर से दुआएं करो।
When you pray, what happens? Listen to me. अब ध्यान से सुनिए कि जब आप प्रार्थना करते हैं तब क्या होता है। Jaya, now you need to go more fast. चित्रा बिल्कुल। No, I want you. When you pray, it reminds you God is in control. और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप याद रखें कि परमेश्वर नियंत्रण में है। He knows, you know that our ways and you know that our understanding is enlightened. और हमारी जो समझ की आंखें, हमारी जो बुद्धि है वो प्रकाशित हो जाती है। Your faith and your trust builds more. आपका विश्वास और आपका भरोसा और अधिक बढ़ जाता है। Your hearts come back to the focus to Jesus. जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपका हृदय फिर से यीशु मसीह के साथ जुड़ जाता है। आप प्रार्थना कर रहे हो और आपके जीवन में देखते हो जीत हो रही है। इस चीज के लिए प्रार्थना की थी, ये उत्तर आ रहा है। इस चीज के लिए प्रार्थना की थी, उत्तर आ रहा है। Doors are getting open for you in the name of Jesus as you are praying in spirit. और जैसे आप आत्मा में प्रार्थना करते जा रहे हैं, आपके लिए हर दरवाजा खुलते जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। और यदि आप अपने चारों ओर समस्या देखते हो तो आप खाली अपने घुटनों पे आओ और कहो, यीशु मसीह मेरी सहायता कर, यीशु मसीह मेरी मदद कर, यीशु मसीह तू मेरी ताकत बन। उसी समय आप देखेंगे खुदा की हजूरी आपके ऊपर आ रही है और आपको ताकत, सामर्थ और अभिषेक दे रही है। हालेलुया। हालेलुया। Now, fourth thing to resist the powers and the plans of darkness is you need to be self-controlled. चौथी बात कि आपने खुद पर संयम रखना है। Sister Chitra, can you read 1 Peter, 1 पत्रस 5th chapter, 5वां अध्याय 8th and 9th verse. 8वीं और 9वीं आयत। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि वो किसे फाड़ खाए। Now listen, हमेशा हम याद रखते हैं कि शैतान सिंह के समान गरजता है और फाड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हम भूल जाते हैं the Bible tells us first be self-controlled and alert. खुद पे संयम रखें और सावधान रहें। Now self-controlled is a fruit of the Holy Spirit. सेल्फ कंट्रोल यानी कि खुद पर संयम रखना ये पवित्र आत्मा का फल है। Till the time we do not have the fruits of the Holy Spirit, we will not be able to counter attacks, face the counter attacks and find victory in our life. जब तक हम खुद पर संयम नहीं रखते हैं तब तक हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में जय नहीं हासिल कर पाएंगे। We need to work on the fruits of the Holy Spirit as we are growing in spirit. जैसे हम आत्मा में बढ़ रहे हैं, हमें पवित्र आत्मा के फलों पे भी कार्य करना है। जब भी हम सोचते हैं हमें ये कास्टिंग्स करनी है, प्रे करना है, इवेंजलिज्म करना है, हम सोचते हैं हमको पावर चाहिए, पर परमेश्वर का वचन कहता है we need to be self-controlled. खुद पर संयम, Self-controlled and alert. खुद पर संयम रखें और जागृत रहें। And when we are asking for more of the fruits of the Holy Spirit, और जब हम ज्यादा पवित्र आत्मा के फलों को मांगते हैं you are becoming strong in spirit. और आप आत्मा में मजबूत होते जाते हैं। Jay, can you say the fruits of the Holy Spirit in Hindi? पवित्र आत्मा के फल प्रेम, संयम, भलाई, कृपालु रहना, नम्रता, आनंद और शांति। जब हम ये सुनते हैं, जब नए विश्वासी ये सुनते हैं तो उनको लगता है ये सब कमजोरी के दान है, बट ये ताकत के दान है, ये ताकत के हैं। क्योंकि जैसे आप ये फलों को, नम्रता, दीनता, प्रेम, संयम, आनंद, ये आपको जो लगता है ये दीन बातें हैं, कि जब आप दीन बातों के लिए प्रार्थना करते हो आप आत्मा में बलवान होते हैं। परमेश्वर का राज्य मैंने बोला उल्टा चलता है, संसार के समान नहीं चलता है, वो स्पिरिट के समान चलता है, वो फ्लैश में नहीं चलता है, वो मेजॉरिटी से नहीं चलता है, वो वॉल्यूम में नहीं चलता है, वो परमेश्वर यीशु मसीह के हिसाब से चलता है। आप दीन बनोगे आप ताकतवर बनोगे, आप प्रेम करोगे आप ताकतवर बनोगे, आप संयम रखोगे आप आत्मा में बढ़ोगे। मैंने एक चीज देखी, मैं काफी साल से मसीह में हूं और काफी साल से सेवकाई में हूं। मैंने देखा है कि आजकल जैसे लॉकडाउन है और काफी यूट्यूब पे, काफी फेसबुक पे अलग अलग मैन ऑफ गॉड के क्या बोलते हैं मैसेजेस और वीडियोस आ रहे हैं। मैंने काफी देखा है कि मैन ऑफ गॉड जब वो कास्टिंग करते हैं तो उनको 10 मिनट 15 मिनट इतना समय लगता है। एक मैन ऑफ गॉड को मैंने देखा है अपने लाइफ में, टीबी जोशुआ, उसको मैंने 3 वर्ड से ज्यादा बोलते हुए कभी नहीं देखा है। उसको मैंने हमेशा एक चीज देखी है, आई कमांड यू गेट आउट इन जीसस नेम। वो उसके बाद प्रे नहीं करता है,
मैंने हमेशा सोचा कि परमेश्वर इस परमेश्वर की दास की मैंने एक चीज देखी है कि ये खाली 3-4 शब्द बोलता है, उसके बाद स्माइल करके कांग्रेगेशन से बात करता है। वो कितने भी चांस हो, कितना भी भयंकर जादू टोना हो, उसको खिलाया हो, पिलाया हो, दुलाया हो, वो सब उधर लिखा दे जाता है, उसकी ज्यादा वो प्रे नहीं करता है। कम आउट इन जीसस नेम। और उसका इंग्लिश भी ऐसा है कि आप थोड़ा समझ नहीं पाओगे इनिशियली, अफ्रीकन इंग्लिश है। आई सेड लॉर्ड में क्या है, मतलब दिस मैन इज क्लोज टू मी। ये व्यक्ति मेरे करीब है। कभी कभी कास्टिंग करने के टाइम में ना वो शैतान आपको भी घुमाते रहेगा नहीं जाऊंगा बातें करेगा, डांस करेगा, ये करेगा, वो करेगा, बैठेगा, नाचेगा, घूमेगा। ये मैन ऑफ गॉड को मैंने देखा 3 वर्ड के बाद ज्यादा मतलब प्रे नहीं करता है और वो डिलीवरेंस भी हो जाता है। परमेश्वर ने कहा जितना मेरे करीब होंगे उतनी मेरी सामर्थ्य बढ़ेगी। अमेजिंग मैन ऑफ गॉड, एक बहुत ही परमेश्वर की बहुत ही अद्भुत ऐसे सेवक, अमेजिंग मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के ऐसे खूबसूरत सेवक। And I pray and I believe in the name of Jesus that we, all the children of God, will come so close to God that we will demonstrate the kingdom of God, the power of God in a greater, in a powerful manner. और हम, मेरी ये दुआ है कि हम सभी भी परमेश्वर के इतने करीब आए कि हम उसके सामर्थ को और उसके स्वभाव को हमारे द्वारा लोग उसे बहते हुए महसूस कर सकें। शैतान आपके ऊपर हमला तब करता है जब आप कमजोर रहते हो। और एक बात याद रखो, जितना आप फलों के दान, फ्रूट्स, पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के फल के लिए प्रार्थना करोगे उतने आप बलवान बनोगे। लोग बोलते हैं कि मेरे को पावर गिफ्ट्स इज फॉर यू, एट द सेम टाइम उसी के साथ द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट आर रिक्वायर्ड बाय अस। पवित्र आत्मा के जो सामर्थ्य दान है वो आपके लिए है, पर पवित्र आत्मा के फलों को भी हमें ध्यान देना है। The fruits will always lift you and make you strong, mind it well. और पवित्र आत्मा के जो फल है वो आपको ऊंचा उठाएंगे और आपको मजबूत और दृढ़ करेंगे। कोई लोग बोलते हैं मेरे में बहुत फ्रूट्स है और व्हाइट कपड़े पहनते हैं और झुक के आते हैं क्योंकि मेरे अंदर बहुत दान है। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा के दान है, आप सब किस्म के कपड़े पहनोगे, सब किस्म से अच्छे से चलोगे, लेकिन आप आत्मा में बलवान होगे। You want to be strong in spirit? Pray for more of the fruits of the Holy Spirit. अधिक से अधिक पवित्र आत्मा के फलों पर आप केंद्रित रहें। The 5th point, we need to fight back with the power of the Holy Spirit. और याद रखिए जो 5वां मुद्दा है कि आप फिर से लड़ें और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से लड़ें। Sister Chitra, can you read Zechariah 4:6, please? ज़करिया 4:6। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का क्या वचन है? न शरीर से, न न बल से, न शक्ति से, न शक्ति से, न बल से चलो, न शक्ति से चलो, परंतु परमेश्वर की आत्मा से चलो। We need to spend time in the presence of the Holy Spirit. और हमें पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता में समय बिताना है। Presence of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सहभागिता में। Presence of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सहभागिता में। The more we are in dwelling presence of the Holy Spirit, I'm telling you, you will see Satan far from you. जितना आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में निवास करने लगेंगे, आप देखेंगे कि शैतान आपसे दूर भाग जाएगा। Disciples, when they were not filled with the power of the Holy Spirit, they were fearful. They left Jesus. Something happens. But the moment they were empowered, they went before the kings. हम तुझसे क्या डरे हैं? हम मनुष्य से क्या डरे हैं? जिस यहोवा ने हमें बुलाया है, हम उसके लिए कार्य करेंगे। Amen. जब पवित्र आत्मा से आप भरोगे, आप सामर्थ्य में आओगे। चर्च, आज जो समय है, आज का जो वक्त है, हमें पवित्र आत्मा में भरना है।
पवित्र आत्मा में रहना है, पवित्र आत्मा की बात सुननी है, पवित्र आत्मा के मुताबिक चलना है, पवित्र आत्मा के we need to give him access, we need to give him allow him to speak to us, we need to allow him to talk to us, we need to allow him to work in us. हमें पवित्र आत्मा को इजाजत देनी कि पवित्र आत्मा हमसे बात करे, पवित्र आत्मा हमारे संग रहे और पवित्र आत्मा की इस उपस्थिति में हम डूबते जाएं। Last 2 points जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। The second last point, you need to remember that you are conqueror through the blood of Jesus. और याद रखिए कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप विजयवान हुए हैं। Sister Chitra, please can you read Revelation 12:11? प्रगटीकरण 12:11. 12:11। और वे मेमने के लहू के कारण, वो किसके कारण? मेमने के लहू के कारण, मेमने का लहू कौन है? यीशु का लहू। और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। Amen. By the power of the blood of the Lamb, power of the blood of Jesus. यीशु के लहू के सामर्थ्य से, मेमने के लहू के सामर्थ्य से They were conquerors. वे विजयवान हुए। You think the blood of Jesus is ordinary? आपको लगता है कि यीशु मसीह का लहू साधारण है? Blood of Jesus has power to forgive you. यीशु मसीह के लहू में आपको क्षमा करने की ताकत है। Blood of Jesus sets you free. यीशु मसीह का लहू आपको आजाद करता है। His mighty power is working in us. यीशु मसीह के लहू के द्वारा उनका अद्भुत सामर्थ हमारे अंदर कार्य करता है। We are more than conquerors through Christ. हम मसीह के द्वारा विजयवान से भी अधिक बढ़कर हैं। We have a new identity in Him. हमारा नया वजूद, हमारी एक नई पहचान है। We are now purchased by His blood and we are His entity. हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे हुए और आज हमारी पहचान यीशु मसीह का लहू है। We are covered by His grace and forgiveness of Jesus. और हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से और उसकी क्षमा से भर चुके हैं। And we live victoriously and no demon or darkness can separate us from the love of Christ. और हम विजयता से जीते हैं और कोई भी शैतानी शक्ति या कोई भी बात हमें यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर Because सकती। there is power in the blood of Jesus. क्योंकि यीशु के लहू में सामर्थ है। There is power in the blood of Jesus. यीशु के लहू में सामर्थ है। There was power, wonder working power in the blood of the Lamb. There was power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. That blood is not an ordinary blood. लहू साधारण नहीं है। That blood speaks for you. वो लहू आपके बदले में बोलता है। That blood stands for you. यीशु का लहू आपके लिए खड़ा होता That है। blood protects you. यीशु का लहू आपको सुरक्षित रखता है। That blood doesn't allow the enemy to encroach in you. यीशु मसीह का लहू शैतान के लिए एक रेखा, एक सीमा बांध देता है कि अब तो यहाँ प्रवेश नहीं करेगा। Hallelujah. हालेलुया। The second last point, you need to understand the power of praise. और जो उसके बाद का मुद्दा है कि आप स्तुति के सामर्थ को जाने। We all know the story. I don't want to go in Acts 16, 25, 26. When Paul and Silas were in the jail and when they were praising God, the shackles, the chains, everything was broken because they were praising God. और हम सभी जानते हैं पौल और सिलास की वो कहानी, जब वो जेल में थे तब भी वो प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं और वो सारे बंधन टूट जाते हैं। Praise and worship will make the enemy flee. स्तुति और आराधना से शैतान भाग जाता है। It pushes back the darkness that surrounds. और अंधकार की सामर्थ को तोड़ देता है। It blocks the attacks and breaks off the chain. और सारे शैतान के हमलों को रोककर सारी बेड़ियों को वो तोड़ देता है। You know, when King Jehoshaphat, when they and his people just praised God, there was ambushments in the camp of enemy, and they need not to take even the sword to fight against the enemy. They were already declared as victorious. और हम देखते हैं कि राजा यहोशाफात के समय जब उन्होंने स्तुति की तब कैसे वो जो दुश्मन आए थे कैसे वो बिखर गए और कैसे उन्हें तलवार लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद ब खुद हार गए। आप स्तुति और आराधना कर रहे हो प्रतिदिन, आप जय में बढ़ रहे हो, आप विक्ट्री में बढ़ रहे हो।
आप ग्लोरी में बढ़ रहे हो, आप परमेश्वर के करीब आ रहे हो, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हो, और हर एक अंधकार की शक्ति जो आपके विरुद्ध कार्य कर रही है उसका नाश हो रहा है। शैतान चाहता है आपको इधर गिराऊं उधर गिराऊं। आप आत्मा में बढ़ रहे हो, फल में बढ़ रहे हो, दान में बढ़ रहे हो, स्तुति में बढ़ रहे हो, यीशु के लहू को ले रहे हो। शैतान की कोई भी ताकत आपके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती है। आप कहते हो शैतान शक्तिमान है, आप मिस्टेक कर रहे हो। The name of Jesus is greater than any other name on the earth, in the heaven, below the earth. His name is glorious. His name is mighty. His name is more than any other name, because that is a victorious name. That is a name that reigns forever. His kingdom never ceases. His name never fails. That is the Son of God who's seated on the right hand of the Father, and who is in all His glory, is in control. That is your God. That is my God. Do not ever doubt on your God. Do not ever even think what God will do for me. He is doing everything for you. He has done everything for you, and He is preparing a place for you. Are you ready to be in that place? क्या आप तैयार हैं उस स्थान के लिए? Are you ready and focusing on that place? क्या आप उस स्थान के लिए तैयार हैं जो यीशु मसीह स्वर्ग में आपके लिए बना रहे हैं? Or you are only looking on the earth? I want to expand here. या सिर्फ धरती पर इन धरती की चीजों तक आप सीमित हो चुके हैं? You will expand here. आप यहाँ पर भी बढ़ेंगे, By no doubt, because you are the child of the Most High God. क्योंकि आप यीशु मसीह के अति प्रिय संतान हैं। But your everlasting place is with Jesus पर Christ. याद रखें, सनातन के लिए जो स्थान आपका है वो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में है। Trust God and His power and His protection. यीशु मसीह की सुरक्षा, यीशु मसीह के सामर्थ और यीशु मसीह के प्रकाश में विश्वास करें। Psalms 91 says, "He who dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadows of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snares and the deadly pestilence. He will cover you with His feathers. Under His wings you will find refuge. His faithfulness will be with your shield and rampart." जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आप यीशु की छाया में हो तो आप सुरक्षा में हो। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। Amen. Hallelujah. हालेलुया। You don't have to be worried, church. आपको चिंता नहीं करनी You don't have to है, be fearful. आपको घबराना नहीं है। Jesus Christ has already won the battle on the cross. यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए विजेता हासिल कर ली Just है। be close to Him. आप यीशु के करीब रहें, Be in prayer, be in word, be in spirit. आप प्रार्थना में रहे, वचन में रहे, आत्मा में बने रहे। And I say to you, no weapon that is formed against you will prosper. और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके खिलाफ बना हुआ हर हथियार नाकाम होगा। Every tongue that riseth against you shall be condemned in judgment, for this is the privilege of the servants of और God. हर जुबान जो आपके विरुद्ध में बातें करती है, परमेश्वर उसे दंडित करेंगे, क्योंकि यही परमेश्वर के संतों की विरासत है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। The victory is ours विजयता हमारी है, when the battle is the Lord's. सब युद्ध परमेश्वर का The है Lord is by your side. और यीशु मसीह आपके साथ है। So who can be against तो you? आपके विरुद्ध कौन हो सकता Who है? can succeed against you? आपके विरुद्ध कौन सफल हो Who सकता can है? harm you? आपको कौन तकलीफ पहुंचा सकता है? When Goliath came and defiled the armies of the living God, David was not an army man. David was not a warrior. David was an ordinary shepherd. Went with a stone and pebble and said, "How can you defile the armies of the living God?" He struck that Goliath and he fell down, and with his own sword he cut off his neck. Why? Because he knew the name of God is mightier than this Goliath I can see. The name of my living God is much mightier than the one who's defiling the armies of the living God. He believed on that name. He trusted in that name. He went in that name. He was not wearing that helmet and all the warrior things, but he was bearing the name of Jesus. He went with that faith and he got victory. Today God is speaking to you. Take my name, child. Take my name, child. Believe in my name, child. It is victorious. It is powerful. It is wonder-working name.
Take that name and destroy the powers of darkness, and the victory is yours. Amen. The name is already inside you. The Spirit of God is already inside you. The Spirit of God is already residing in you. But you are failing to take the name of Jesus. Tonight God is encouraging you. Take my name, rebuke that sickness, rebuke that lack, rebuke that pandemic, rebuke that evil, and get victory in every area of your life. Amen. Because that name is victorious. Jesus. You just need to believe in that name. You just need to trust in that name. And take that name and go forward. Every place you will go, victory will be yours. Because of Jesus Christ. May the Lord bless you. Thank you all the viewers from connecting us. And I believe today is a time that God has spoken to your spirit to get arise in faith, in spirit, and to see victory in your life. और सारे दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमसे जुड़े रहने के लिए। और आज का वचन हमें जो कहता है कि हम जागृत रहें, हम जाग जाएं और आत्मा में बने रहें। Thank you so much for watching. धन्यवाद आप सभी को। God bless you all. और प्रभु आप सभी को आशीष दें। Hope to see you very soon. और फिर से एक बार हम आपसे मिलेंगे। Thank you so much. धन्यवाद।